ಐಟಂ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆಚಿ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲಾ. ದಿವ್ಯಶ್ರೀ ದಾಸ್ ಭೈರವೈಕ್ಯ ಮಂದಿರ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. Because of his vision, great vision, he introduced and launched and initiated so many projects for upliftment and development of our country. Because of the paucity of the time, I can't mention all those things, though our Paramatmanji has mentioned several things. One thing I would like to mention over here, though it is not possible to mention all. One concept, because most of the guys who are present here, either of Gen Z or who have taken in the era of the Gen Alpha. One principle for which he has given, which he has driven the engine of economy, spirituality and culture in our country, Startup India. Way back in 2016, when Narendra Modi ji has initiated Startup India concept, understanding the need of that, hardly 400 startups were there in our country. ಕೇವಲ 400 ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದವು. When Modi ji has given that concept of, initiated the concept of Startup India 2016, as we have been celebrating decennial program, after 10 years, do you know, from 400 startups, now we have raised more than 2 lakh startups. This shows, ಇದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಇಕಾನಮಿ ಯಾಕೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ. Unicorns, even to the day, it may be quite strange to listen. In the year 2016, when that was initiated and launched, not even one unicorn was there in the year 2016. Now you can see more than 125 unicorns. Quite, it is very immense. It gives me an immense pleasure to say that more than 45% of unicorns are from Karnataka. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದ ಟೈಮ್, I must congratulate, I must greet you all for having made your presence at this point of time when our Honorable Prime Minister has come here to inaugurate the occasion. As I have mentioned, my Pujya Guruji has contributed so much to the society. As our Kumar Swami has mentioned, Pujya Guruji has enumerated, has initiated 9 limbs of services, Anna, Akshara, Arogya, and so on and so forth. After Pujya Guruji's demise, after he has left the body and became one and union with the Kalbhairaveshwara, Pujya Guruji's dream, even today, it is being realized through the millions of devotees. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಜಿಯವರು ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಕ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆರೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಟುಡೇ ಅವರ ಹಾನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ has inaugurated structure and temple complex of Pujya Guruji's Mandir. Whole complex, temple complex, is built with the igneous rocks. Not even a single bar of reinforcement is used. Though temple physical structure is built by igneous rocks, Pujya Guruji's vision and his principles have been igniting billions and billions of people. Today, as a result, more than 1,75,000 students are taking education to realize Pujya Guruji's vision. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹದೊಂದು ದಿವ್ಯ ಭವ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೇವೇಗೌಡರವರು ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರು, ನಾಡಿನ ಹಿರಿಯರು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರಫೌಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್. Because of his profound wisdom, universal renunciation, his compassion towards the poor people, and the self-respect towards our country, he has made our country quite great. It's all because of that. Our millions of our devotees wanted him to come to our Sri Kshetra for last 10 years. It's because of that, to satisfy and to realize the desire of all our devotees, he has come
once again wholeheartedly welcoming to our Sri Kshetra Adi Chunchanagiri and introducing to all our devotees, I conclude my words beseeching Lord Kalabhairveswara blessings upon him. Jai Shri Gurudev. In his Anugraha Sandesham, Paramapujya Jagadguru Shri 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 Dr. Nirmalanandanath Mahaswamiji has of course echoed the sentiments of millions and millions of devotees of Adi Chunchanagiri Mahasamsthana Mata. Let's give a round of applause and thank the Honorable Pujya Swamiji for his highly impressive and inspiring Anugraha Sandesham. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಹೊರತರಲಾಗಿದೆ. ಐ ವುಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಆನರಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ ಅಂಡ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಜಿ ಟು ಲಾಂಚ್ ದ ಬುಕ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಲಹರಿ ಅಂಡ್ ಶಿವ ಮಹಿಮ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ. It's a book which has been brought out and it will be released by the honorable PM and the ex-prime minister. Saundarya Lahari means waves of beauty. Shiva Mahimna Stotram is a revered Sanskrit hymn dedicated to Lord Shiva. In this volume, ladies and gentlemen, please note, the Sri Adi Chunchanagiri Mahasamsthana Mata presents an interpretation of both these works in accordance with the teachings of the Nath Yogis. Please give a huge round of applause for the release of this book, Saundarya Lahari and Shiva Mahimna Stotram. Comprising of 43 verses, the Shiva Mahimna Stotram and Saundarya Lahari is, of course, spiritual significance. Thank you very much, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable former Prime Minister Shri H.D. Devegowda ji, and all the dignitaries on the dais. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವು ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. It's now time to listen to the words of a great visionary, a true world leader, and of course, inspiring each and every Bharatiya towards Atmanirbhar Bharat so that every Indian should be happy. So please put your hands together. Zordar taaliyon ke saath, let's welcome the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for his inaugural address. By the Honorable Prime Minister has attracted the entire world. The entire world is now looking towards India, thanks to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for the tremendous amount of leadership what he has shown. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶದತ್ತ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜಿ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. परम पूज्य जगद्गुरु श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंदनाथ महास्वामी जी, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय एच.डी. देवेगौड़ा जी, यहाँ के राज्यपाल श्रीमान थावरचंद गहलोत जी, परम पूज्य जगतगुरु स्वामी परमात्मानंद जी सरस्वती जी, केंद्र में मेरे सहयोगी एच.डी. कुमार स्वामी, शोभा करंदलाजे जी, कर्नाटका के नेता प्रतिपक्ष आर अशोका जी, राज्य के मंत्री एन चेलुवराय स्वामी जी, सभी पूज्य संत, अन्य सभी महानुभाव
और विशाल संख्या में पधारे हुए सभी भाइयों और बहनों, साथियों, आज मेरा मन कुछ ऐसे भावों से भरा है जिसे शब्दों में प्रकट करना मुश्किल है। श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन और पूजन, श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर के भव्य उद्घाटन का साक्षी बनना, ऐतिहासिक ज्वाला पीठ में समय बिताना, आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचे संतों का सानिध्य प्राप्त करना और अब यहां उपस्थित जन समूह के दर्शन करना, ये अनुभव हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आप सभी के बीच आने का अवसर मिला। मैं आप सभी को इस अवसर की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कर्नाटक आना मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात होती है। हर बार यहां आकर मुझे नई प्रेरणा मिलती है, लेकिन आज सक्करे नगरा मधुर मंड्या जिले का ये दौरा कई वजह से महत्वपूर्ण है। ये धरती शुगर केन की स्वीटनेस के लिए जानी जाती है और यहां के लोगों की बातों में वैसी ही स्वीटनेस दिखती भी है। उनका अपनापन, उनका स्वागत करने का भाव दिल को छू जाता है। मैं अक्सर कहता हूं कि कर्नाटका तत्वज्ञान और तंत्र ज्ञान दोनों में समृद्ध है। यानी दर्शन की गहराई और टेक्नोलॉजी की शक्ति दोनों यहां मौजूद है। श्री आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ जैसे आध्यात्मिक केंद्र इस महान भूमि की महान देन है। ये संस्था तत्वज्ञान, आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों के माध्यम से समाज को दिशा देती है। साथियों, भारत हजारों वर्षों से चलती आ रही एक जीवंत सभ्यता है। दुनिया में बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां परंपराएं इतनी लंबी अवधि तक निरंतर बनती रहती है। जब हम श्री आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ को देखते हैं तो हमें इस निरंतरता का साक्षात रूप दिखाई देता है। इस पवित्र मठ का इतिहास लगभग 2000 वर्षों का है। इसकी गुरु परंपरा, इसका आध्यात्मिक दर्शन
और इसकी सेवा की परंपरा ने पीढ़ियों तक इस भूमि को समृद्ध किया है। इसी परंपरा में जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी जैसे महान संत हुए, जिन्होंने इस विरासत को नई ऊंचाई दी। आज जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंद नाथ महास्वामी जी उसी धारा को नई ऊर्जा और गति और समर्पण के साथ सबको साथ लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हमारे समाज में समय समय पर ऐसे महान व्यक्तित्व आते रहे हैं जो केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक सीमित नहीं रहे, वे लोगों के बीच रहे। उन्होंने लोगों के सुख दुख को समझा, उनके संघर्ष को महसूस किया और समाज को दुख से, पीड़ा से, कठिनाई से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर सामान्य मानवी की चुनौतियों को समझते थे, इसलिए उनके लिए भक्ति का अर्थ समाज से दूर जाना नहीं, बल्कि समाज के लिए आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाना था। साथियों, महास्वामी जी ने एजुकेशन के क्षेत्र में सैकड़ों संस्थान स्थापित किए, जहां प्राइमरी लेवल से लेकर मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे प्रोफेशनल कोर्स तक की शिक्षा दी जा रही। इसका लाभ सबसे ज्यादा गरीब और ग्रामीण परिवारों से आने वाले बच्चों को मिला है। हेल्थ के क्षेत्र में भी उनका विजन उतना ही ट्रांसफॉर्मेटिव था। उन्होंने ऐसे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस बनाए जहां आज भी सेवा भाव से काम हो रहा है। उनका मानना था कि क्वालिटी हेल्थ केयर कुछ लोगों का विशेष अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए। साथियों, आज हमारी सरकार भी इसी विजन के साथ काम कर रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत करोड़ों गरीबों का अस्पताल में मुफ्त इलाज किया गया है। हमने इस योजना को 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया है, ताकि उन्हें गरिमा के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। साथियों, आज इस श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर में उपस्थित होना और जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम सभी जानते हैं, महास्वामी जी करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनकी करुणा केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं थी, वो सभी जीवों तक फैली हुई थी। पीकॉक्स की रक्षा के लिए उन्होंने जो सामाजिक आंदोलन खड़ा किया,
वो इसका उदाहरण है। और आज मुझे स्मृति चिन्ह में भी पूज्य स्वामी जी ने पीकॉक ही दिया है। ये केवल पर्यावरण संरक्षण का काम नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक चेतना से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पीकॉक हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है और भगवान सुब्रमण्य का वाहन भी है। वैसे दिल्ली में आप सब देशवासियों की कृपा से भारत सरकार ने मुझे जो सरकारी निवास स्थान दिया है, वहां भी पीकॉक बहुत है। और कई से तो मेरी अच्छी दोस्ती भी हो गई है। मैं तो प्रत्यक्ष देखता हूं कि पीकॉक कितना शांत और सुंदर पक्षी है। साथियों, आज जगतगुरु श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंद नाथ महास्वामी जी अपने गुरु की परंपरा आने वाले समय में यह स्थान निश्चित रूप से सेवा, साधना और प्रेरणा का केंद्र बनेगा। साथियों, श्री आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ अन्न, अक्षर, आरोग्य, अध्यात्म, आश्रय, अरण्य, आकलु, अनुकंपा और अनुबंध, इन 9 सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसी भावना से मैं आप सभी के सामने 9 ऐसे क्षेत्र रखना चाहता हूं जहां हम सभी मिलकर एक सामूहिक संकल्प ले सकते हैं। मैं अपने 9 आग्रह आपके सामने रखता हूं। साथियों, यह हमारा मंडिया पानी के महत्व को समझता है। यह पूरा क्षेत्र मां कावेरी के आशीर्वाद से पला बढ़ा है और इसलिए मेरा पहला आग्रह है कि हम सभी पानी बचाने और पानी के बेहतर प्रबंधन का संकल्प लें। मेरा दूसरा आग्रह पेड़ और प्रकृति से जुड़ा है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत करोड़ों लोगों ने अपनी माताओं के नाम पर पेड़ लगाए हैं। हम भी अपनी मां के सम्मान में पेड़ जरूर लगाएं और धरती माता की रक्षा का संकल्प लें। मेरा तीसरा आग्रह स्वच्छता को लेकर है। धार्मिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थान हो, गांव हो या शहर, हर जगह स्वच्छता बनाए रखना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। ये हमारा कर्तव्य है। मेरा चौथा आग्रह स्वदेशी और आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। हम भारतीय उत्पादों को अपनाएं, भारतीय मैन्युफैक्चरर्स और उद्योगों को मजबूत करें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर के जिए। मेरा पांचवा आग्रह देश की सुंदरता को देखने से जुड़ा है। हम अपने देश को जानें, हम देश के अलग अलग कोने में घूमें।
डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दें। साथियों, मंडिया मेहनती किसानों की भूमि है। मेरा छठा आग्रह किसानों से है कि वे केमिकल मुक्त, केमिकल फ्री प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। मेरा सातवां आग्रह स्वस्थ खान-पान से जुड़ा है। अभी हमारे बीच आदरणीय श्री देवेगौड़ा जी मौजूद है। वे रागी मुद्दे को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। ये पूरा क्षेत्र रागी के महत्व को समझता है। युवा पीढ़ी भी मिलेट्स को अपने भोजन में शामिल करें। हमारे देश में ओबेसिटी, मोटापा एक बड़ी चुनौती बन रही है। इससे निपटने के लिए भोजन में तेल की मात्रा 10% कम करने का भी प्रयास करें। मेरा आठवां आग्रह योग, खेल और फिटनेस से जुड़ा है। हम सभी को इन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। मेरा नौवां आग्रह सेवा भावना से जुड़ा है, जिसे आप लोग अपने कार्यों से लगातार सिद्ध कर रहे हैं। साथियों, जरूरतमंद की सेवा समाज को मजबूत बनाती है। इससे आपके जीवन में एक बड़ा उद्देश्य जुड़ता है। यदि हम सभी इन 9 आग्रहों पर ईमानदारी और संकल्प के साथ आगे बढ़े तो हम विकसित कर्नाटका और विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। मैं एक बार फिर आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर निर्मलानंदनाथ महास्वामी जी और श्री आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस पावन अवसर पर, इस पवित्र भूमि में, इस तपोभूमि में आपने आमंत्रित किया, कुछ पल आपके साथ बिताने का अवसर मिला। मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।